Bismillahirrahmanirrahim. I'm Zafar Iqbal Zafar from the Readers. Today we are going to discuss unit number 3 of class 10 and it's lecture 2. The title of the unit is Try Again. फिर से कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स. आज हम इसकी एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे. एक्सरसाइज का एक पार्ट है राइट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास हीट, परसिवियर, स्ट्राइव, केस एंड पेशेंस. हमने इनके सिनोनिम्स और इनके मीनिंग्स देखने हैं. फर्स्ट वर्ड हमारे पास हीड, इसका सिनोनिम है अटेंड टू, मानी है तवज्जो देना, परसिवियर कीप ऑन साबित कदम रहना, स्ट्राइव ट्राई हार्ड कोशिश करना मेहनत करना, केस सिचुएशन हालत, पेशेंस एंड्योरेंस सब्र या साबित कदमी. नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड है करेज, कंकर, डिस्ग्रेस, हार्ड एंड रिवार्ड. करेज का सिनोनिम है ब्रेवरी, मानी है हौसला, कंकर विन फतह हासिल करना, डिस्ग्रेस डिसऑनर शर्मिंदगी, हार्ड डिफिकल्ट मुश्किल, रिवार्ड अवार्ड या गिफ्ट, सिला यानी इनाम. नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके हमने आंसर्स देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टेंजा. फर्स्ट स्टेंजा में हमें क्या सबक मिलता है. इसका आंसर होगा the first stanza teaches us the lesson of perseverance. It teaches that our first failure should not make us sad, rather it should urge us to make more daring and steady steps. Second question है हमारे पास what can we learn from failure. इसका आंसर है failure teaches us the lesson of courage. It urges us to take more daring and steady steps to reach our goal. Next question number 3 है हमारे पास how is failure not a disgrace. इसका आंसर है to leave working after failure is surely a disgrace, but if failure urges to make more daring and steady steps it is not a disgrace then. Next question है how many times should we try and why. इसका आंसर है we should keep on trying until we succeed. If we leave trying after failure it would be disgraceful. That is why we should keep on trying. Next हमारा question number 5 है what should we do if we find a task hard. If we find a task hard we should not be discouraged. We must see that if other people can do it we can also do it, then we should do it successfully. Last question है give an example of struggle from your life. इसका आंसर है my class fellow Ahmad is an intelligent boy but he could not get good grades in the first term examination due to health issues. He did not get hopeless. He worked hard and topped the class in the final exam. नेक्स्ट हमारे पास है सिमली की डेफिनेशन अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू apparently unlike things are explicitly compared usually in a phrase introduced by like or as. अगर दो unlike things को अगर बजाहिर नजर आने वाली unlike things को कंपेयर किया जाए as या like यूज करते हुए तो इस डिवाइस को सिमली कहते हैं. आमतौर पर लाइक या एज के साथ जब सिमली बनाई जाती है तो वो फ्रेज की फॉर्म में होती है. हमारे पास फर्स्ट सिमली है he is as fast as a horse. as fast as a horse, as a horse ये सिमली है फ्रेज की फॉर्म में. it is cold like ice ये सिमली है फ्रेज की फॉर्म में. नेक्स्ट बी पार्ट में select the choice that explains the meaning of the simile as it is used in the sentences. First sentence है हमारे पास on the cold winter day under the covers I kept as snug as a bug in a rug. The simile as snug as a bug in a rug means B ऑप्शन पे हम टिक करेंगे I was cozy in my bed. The new teacher was as sweet as apple pie. The simile as sweet as apple pie means A option है the new teacher was nice.
नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3 हमारे पास, द लीडर वाज एज वाइज एज एन ओल। द सिमिली एज वाइज एज एन ओल मींस, सी ऑप्शन पे टिक करेंगे, द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। 4 पे, द शॉपिंग सेंटर वाज लाइक अ थ्री रिंग सर्कस द डे बिफोर ईद। द सिमिली लाइक अ थ्री रिंग सर्कस मींस, सी ऑप्शन पे टिक करेंगे, द शॉपिंग सेंटर वाज रियली बिजी। नंबर 5 पे है, दानिश थ्रू such a temper outburst over such a tiny thing, he was acting like a baby। the simile like a baby means, B option है, दानिश was acting childish। नंबर 6 पे है, मोशन was as explosive as a volcano when he found out his bike had been stolen। The simile as explosive as a volcano means, B option पे टिक करेंगे, मोशन was angry। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, fill in the blanks to make similes, use these similes in sentences। फर्स्ट पे हम करेंगे as slow as a turtle, number 2 as quiet as a mouse, number 3 as black as coal, number 4 as tall as giraffe, number 5 as sour as a lemon, number 6 as sweet as honey। नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, द रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड्स आउट ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स आर इन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। लफ्ज के शुरू में या स्ट्रेस्ड सिलेबल में सेम साउंड का रिपीट होना एलिट्रेशन कहलाता है। सेम साउंड का रिपीट होना एलिट्रेशन कहलाता है। जनरली हम कहते हैं जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, she sells seashells by the seashore, तो ये भी sells, seashore, sea, तो ये एलिट्रेशन की एग्जाम्पल है हमारे पास। नेक्स्ट पर्सनल प्रोनाउन का टेबल हमारे पास गिवन है। हमारे पास 3 पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है आई और वी, सेकंड पर्सन है यू, थर्ड पर्सन हमारे पास ही, शी, इट एंड दे। तो ये सिंगुलर फॉर्म है, आई, यू, ही, शी, इट, दे, ये सिंगुलर फॉर्म है। और प्लूरल फॉर्म है वी, यू एंड दे। ये फर्स्ट केस आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये नॉमिनेटिव केस कहलाता है। और ये सेकंड जो है मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद माय, माइन और ऑर्स, योर्स, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर्स, ये पोजेसिव केसेस हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के ये पोजेसिव केसेस हैं। फर्स्ट, ये नॉमिनेटिव केस हमेशा किसी भी सेंटेंस में जनरली सब्जेक्ट बन के आता है, और ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट बन के आता है। पोजेसिव केस किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन की पोजेशन को शो करता है। नेक्स्ट हमने यहां पर प्रोनाउन यूज करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, देयर इज नो नीड टू शाउट, आई कैन हियर यू। सेकेंड सेंटेंस है, यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर, वी आर गुड टीम, वी आर अ गुड टीम। नंबर 3 है, वी हैव गॉट अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, कुड यू हेल्प अस। नंबर 4 है, दिस इज अ गुड फोटो, इजंट इट, इज समीना इन इट। बी है, यस दैट्स शी, लुक she is next to Fahad। 5 है, who did this mowing? I did it this morning। 6 है, is this Ahmad's bag? B है, no, he didn't bring one। if it can't belong to him, it can't belong to him। नंबर 7 पे है, I'm looking for my shoes, have you seen them? Yes, they are here। Next, B part है, select a personal pronoun that agrees with the subject of each sentence। Example है, the group has dash meeting here, the group has its meeting here। Anyone can get his name in the news, none of the checks were cashed, they finally expired। My mother and her sister took their vacation together, all are welcome, you just need to call for directions to the party। Venus and Mars have their orbits,
nearer to Earth than to any other planets. The band starts its tour tomorrow night. Any of the candidates could win. They are very much alike. Everybody has his own dreams and goals. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री. फॉर एग्जांपल हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग. यहां पर हमने डिग्रीज फिल करनी है. एडजेक्टिव की अप्रोप्रिएट डिग्री के साथ हमने ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, माई फैमिली एंड आई वेंट टू विजिट मरी लास्ट समर. ऑफ ऑल द समर्स आई हैव हैड, आई वुड से दिस वाज द बेस्ट. In Murray, we enjoyed the horse ride. I rode a horse that ran faster and faster. Number 3 पे है, we also climbed a tree and when I reached the highest branch, I was more tired than my sister. I bought, number 4 पे, I bought a jacket which was quite more expensive and my sister chose a sweater because she found it much cheaper. Second degree, much cheaper to buy. Number 5 पे है, after our trip, I feel I am the luckiest boy on earth. Next, अगर किसी सेंटेंस में हमारे पास ज्यादा एडजेक्टिव्स आ जाएं, ज्यादा एडजेक्टिव्स किसी एक सेंटेंस में आ जाएं, तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से जिसे जी चाहे पहले नंबर पर, दूसरे या तीसरे चौथे नंबर पर रखें, बल्कि एडजेक्टिव्स को सेंटेंस में लिखने का बाकायदा रूल है. यानी उन्हें एक ऑर्डर, एक तरतीब के साथ लिखा जाता है. तो जब ज्यादा एडजेक्टिव्स किसी सेंटेंस में इकट्ठे मिलके आ जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो एडजेक्टिव्स लिखेंगे जिनका ताल्लुक वैल्यू या ओपिनियन से होगा. सेकेंडली हम वो लिखेंगे जिनका ताल्लुक साइज से होगा. तीसरे नंबर पर जिनका ताल्लुक एज या टेम्परेचर से होगा. नंबर 4 पे वो एडजेक्टिव्स लिखेंगे जिनका ताल्लुक शेप यानी शक्ल से होगा. 5वें नंबर पर कलर, 6ठे नंबर पर ओरिजिन और 7वें नंबर पर मटेरियल आएगा. अगर हम इसको फॉर्मूला की सेंस में यूज करें तो हमें याद ये रखना होगा, SAS.com यानी वैल्यू, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल. SAS.com वैल्यू, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल. ये फॉर्मेशन आपने एडजेक्टिव की ऑर्डर के हवाले से याद रखनी है. नेक्स्ट हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं. हमें इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव की एक्चुअल अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है. फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वी सा ग्रे ह्यूज आ डैश वेल इन द सी. इसमें हम करेंगे, वी सा आ ह्यूज ग्रे वेल in the sea. We saw a huge grey whale in the sea. Next हमारे पास है second sentence, Babar uses the blue medium rubber dash ball for basketball practice. हम इसे करेंगे, Babar uses the medium blue rubber. तो मीडियम का ताल्लुक चूंकि साइज से है, ब्लू ये कलर है, रबर मटेरियल है, तो हम साइज पहले यूज करेंगे, कलर उसके बाद यूज करेंगे, मटेरियल उसके बाद यूज करेंगे. बाबर यूजेस द मीडियम ब्लू रबर बॉल फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस. नंबर 3 पे है, महरीन ब्रॉट फ्यू चॉकलेट डार्क ट्राइंगुलर बार्स टू द बर्थडे पार्टी. हम इनको अरेंज करेंगे. नंबर 3 की अरेंजमेंट हमारे पास होगी, आ फ्यू पहले लगाएंगे, आ फ्यू ट्राइंगुलर डार्क चॉकलेट्स, आ फ्यू ट्राइंगुलर डार्क चॉकलेट, ये तरतीब रखेंगे. नंबर 4 पे है, द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर मेड आउट ऑफ रॉक एनॉर्मस रेक्टेंगुलर. इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल साइज को यूज करेंगे, एनॉर्मस फिर शेप यूज करेंगे, एनॉर्मस रेक्टेंगुलर, उसके बाद मटेरियल यूज करेंगे रॉक, एनॉर्मस रेक्टेंगुलर रॉक.
शाहिद कैन ईट थिन क्रस्ट स्क्वायर 5 पिज्जा स्लाइसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैल्यू 5, उसके बाद साइज थिन क्रस्ट, उसके बाद शेप स्क्वायर, 5 थिन क्रस्ट स्क्वायर पिज्जा स्लाइसिस। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज की डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव एक वर्ड पे कंसिस्ट करता है और एडजेक्टिव वर्ड्स ज्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल होता है। एडजेक्टिव भी किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव फ्रेज भी किसी नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है। द ब्लैक अम्ब्रेला इज माइन, यहां पर ब्लैक सिंगल वर्ड पे कंसिस्ट कर रहा है, अम्ब्रेला इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, ब्लैक एडजेक्टिव है। सेकेंड सेंटेंस में द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल, अब विद अ ब्रोकन हैंडल, अब ये अल्फाज ज्यादा हो गए यानी फ्रेज बन गया। ये सारा फ्रेज एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ऐसा फ्रेज जो किसी नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। विद अ ब्रोकन हैंडल ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इस एग्जांपल में हमारे पास ई पार्ट में कुछ सेंटेंसेस हैं, हमने इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है। ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, विद अ स्ट्रेंज डिवाइस एडजेक्टिव फ्रेज है, बैनर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ऑफ द स्कूल एडजेक्टिव फ्रेज है, प्रिंसिपल को क्वालिफाई कर रहा है। ऑफ द जजेस एडजेक्टिव फ्रेज है, डिसीजन इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ऑफ द माउंटेन्स एडजेक्टिव फ्रेज है, टॉप्स इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इन द रियर एडजेक्टिव फ्रेज है, रनर इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस हमने यूज करना है। इन ब्लैंक्स में हमने या तो विल यूज करना है या बी गोइंग टू यूज करना है। दोनों में डिफरेंस ये होता है स्टूडेंट्स, विल हम तब यूज करते हैं जब हम इंटेंशन शो कर रहे हो, जब हम इंटेंशन शो कर रहे हो तो हम विल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं आई शैल गो टू कराची, आई आई शैल गो टू कराची, दे विल डू देयर वर्क। तो इन सेंटेंसेस में जस्ट इंटेंशन शो हो रही है तो हम विल या शैल यूज करते हैं। लेकिन बी गोइंग टू, बी से मुराद उसकी कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, जैसे इज एम आर, यानी इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो जब बी गोइंग टू यानी एम आर या इज गोइंग टू यूज करते हैं तो तब हम इंटेंशन प्लस प्रिपरेशन, इंटेंशन प्लस प्रिपरेशन, साथ इरादे के साथ काम करने की तैयारी भी शो करनी हो तो बी गोइंग टू यूज करते हैं, सिर्फ इंटेंशन शो करनी हो तो विल यूज करते हैं। इन सारे सेंटेंसेस में विल या एम गोइंग टू दोनों में से जो भी आना था, बी गोइंग टू या विल दोनों में से जो भी आना था वो फिल कर दिया गया है। आप अच्छी तरह से इस रूल के अकॉर्डिंग टू इन सेंटेंसेस को प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट हमारे पास होमवर्क है, हमने कंप्लीट एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है, वोकैबुलरी हमने अच्छी तरह से देखनी है, ग्रामर के जितने भी रूल्स एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं हमने वो सारे अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। आज के चैप्टर के एंड पे आज का लेसन, आज की अच्छी बात ये, नोबडी गेट्स बिजी, जस्ट प्रायोरिटीज आर चेंज्ड। मसरूफ कोई भी नहीं होता, महज तरजीहात बदल जाती हैं। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज।